Hello friends, welcome to BioPunk. I'm Dr. Khushboo and today's topic is mechanism of HIV infection. Before understanding it, let's understand about this virus, which is human immunodeficiency virus. Like it's human aminovirus. So it is basically causing, immune system deficiency. So before understanding it, let's understand a bit about virus. That we know virus is what? Virus is a connecting link between living and non-living. Okay, connecting link. So what does it mean? Connecting link between living and non-living. What does it means basically living and non-living? Because it's a particle itself it has no entity, no life. Okay, but when it enters into the host body, what happens inside host body? It start replicating, because in host there is a DNA, right? The in host there's a cell, and cell is having a DNA. This virus, they inserts its DNA and integrates it, so that when the replica of the DNA of the cell is going to form, the replica of virus is also going to form. This is how the virus is replicating inside the host body. Okay, so since it's a connecting link between living and non-living, means ये खुद से तो ये non-living है, लेकिन वो living organism के अंदर जाके replicate कर सकता है. तो इसके पास होता क्या है, वायरस के पास क्या क्या चीजें होती हैं? So virus is having a capsomere. Capsomere is what? Capsule. Capsule is outer proteinous sheath. So it's a outer protein capsule और अंदर इसके DNA होता है. So DNA is a genetic material. Sometimes in viruses, instead of DNA, there is RNA. तो RNA भी इसका genetic material हो सकता है, DNA भी इसका genetic material हो सकता है, but it does have only a capsule, which is a proteinous sheath, of course, and DNA or RNA as a genetic material. लेकिन क्योंकि अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो वो डीएनए, तो हमारे होस्ट के पास तो डीएनए है और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो वो इंटीग्रेट ही नहीं हो सकता. इसके लिए आरएनए के साथ इसके पास एक एंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. reverse transcriptase. Okay, so reverse transcriptase is an enzyme which converts RNA into DNA. Okay, RNA से DNA में बदल देने वाला enzyme is called reverse transcriptase. So let's see about human immunovirus. तो human immunovirus के अंदर क्या है? RNA है. RNA के अलावा उसके पास एक एंजाइम है, उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं. There's RNA, which is a genetic material for human immunovirus. और इसके चारों तरफ क्या होता है? एक कैप्सूल, प्रोटीन कैप्सूल, एंड आपके इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं. तो जनरली ये जो इपिटोप्स आर व्हाट? दीज आर एपिटोप्स. एपिटोप्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी के सेल्स, जो हमारे बॉडी के हेल्पर टी सेल्स होते हैं. व्हाट आर हेल्पर टी सेल्स? हेल्पर टी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं. Cell mediated immunity. Okay, so in last lecture I hope you have understood about cell mediated immunity. Okay, so what is cell mediated immunity? सेल mediated immunity क्या मतलब? ये होता है कि हमारा जो सेल, अगर सेल के अंदर कोई वायरस एंटर करता है, एंड देन हाउ दे फाइट विथ दिस एंटीजन, दिस पैथोजन, वो इस एंटीजन या पैथोजन से हमारा सेल कैसे अपने आप को बचाता है. अगर वो सेल के अंदर वो एंटीजन या वायरसेस एंटर करते हैं, तो फिर कैसे ये हेल्पर टी सेल हमें मदद करता है. इट इज अ काइंड ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. अभी के लिए फिलहाल हमें बस ये समझना है कि सेल के अंदर अगर एंटीजन एंटर करता है, तो जो हमें इम्यूनिटी देता है, दैट इज हेल्पर टी सेल. ओके, सो हेल्पर टी सेल हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देगा. और उसको कैसे पहचानेगा कि ये वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है? उसको पहचानने के लिए ये वायरस के पास आपके ऊपर इस तरीके से एपिटोप्स बने हुए होते हैं. दीज आर द एपिटोप्स. ओके, तो वायरस की जो कैप्सूल है, प्रोटीनस शीथ है, उसके ऊपर क्या बना हुआ है? एपिटोप. ये आपके एपिटोप है. तो फिर हेल्पर टी सेल्स को रिकॉग्नाइज करके मार क्यों नहीं देता? अगर हेल्पर टी सेल्स के पास कैपेबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज सच काइंड ऑफ एंटीजन एंड देन killing it, then why don't this helper T cell is going to kill this HIV? Is immunoimmune
जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है उसको क्यों नहीं मार पाता? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इसके जो एपिटोप्स आप देखते हैं, इट इज मास्क, ये मास्क किए हुए है, मास्क पहना हुआ है। इस मास्क को कहते हैं GP120। GP is basically glycoprotein 120, is just a naming। तो ये जो GP120 की मास्किंग है, इस मास्किंग के वजह से ये ब्लफिंग करता है। ये क्या करता है, ये जो वायरस है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसके पास GP120 की मास्किंग होने की वजह से हेल्पर टी सेल इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज such kind of virus. When helper T cell is not able to recognize such kind of virus because of the mask called GP120, how come it gonna kill? नहीं मार सकता। इस तरह से ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा और काफी वेरिएबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो मास्क पहने हुए, आपका जो बॉडी है, आपके बॉडी के हेल्पर टी सेल्स जिसको इम्यूनिटी देना था, वही पहचान नहीं पा रहा कि इसने मास्क पहना हो। वो पहचान ही नहीं पा रहा कि ये आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस एक एंटीजन है, उसको पकड़ के मारना है। कैसे? क्यों? बिकॉज इसने मास्क पहना हुआ। दैट मास्क इज कॉल्ड GP120। व्हाट वी अंडरस्टूड कि हर एक जो एंटीजन है, देयर इज हैविंग ए एपिटोप सो दैट द हेल्पर टी सेल गोना रिकॉग्नाइज इट, इट गेट्स बाइंड टू इट एंड देन इट किल्स टू इट। ओके, लेकिन फिलहाल ये जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, प्रॉब्लम ये पड़ गई कि इसके पास एक मास्क है जिसको GP120 कहते हैं। ओके, so let us understand this structure of virus in bit detail। like HIV envelope है, इसके पास ये एपिटोप है। Epitope is what? Epitope is a thing through which helper T cells recognizes it, get binds to it and then kills to it. Okay, हर एक एंटीजन के पास अपना एपिटोप है, लेकिन इसके एपिटोप दे आर मास्क्ड। ये मास्क है, एपिटोप्स आर मास्क्ड बाय GP120। ओके, और इसके पास अंदर क्या है भाई? अंदर एंजाइम है। इस HIV एंजाइम को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। व्हाट इज दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज लाइक डीएनए को, सॉरी, RNA को DNA में बदलने वाला एंजाइम इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, और ये जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल कोई डीएनए नहीं है, इसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, और हमारे होस्ट के पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो होस्ट है उसके पास अपना डीएनए है, वायरस आकर के अपना डीएनए इसके साथ इंटीग्रेट कर दे, सो दैट जब ये अपना रेप्लिका बना रहा है तो वायरस का भी रेप्लिका बन जाए, इसके लिए आपको डीएनए देना है, ना कि RNA। That's why this kind of virus, which is called human immunovirus, is having RNA along with reverse transcriptase enzyme, so that RNA can be converted into DNA, and that DNA is gonna bind to, that DNA gonna integrate with the DNA of host body। Okay, ताकि अपने रेप्लिका के साथ साथ डीएनए का भी, सॉरी, HIV का भी रेप्लिका, HIV के डीएनए का भी रेप्लिका बना दे। ओके, सो दिस इज हाउ ह्यूमन इम्यूनोवायरस वर्क्स। अब हमारे बॉडी का जो मैक्रोफेज है, वो पहचानता है कि कहाँ कहाँ सेल डिविजन से जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, लाइक एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शन हुआ, या हेल्पर टी सेल्स ने इसको, जो एंटीजन उसको मार दिया। आई होप एवरीबॉडी नो अबाउट एंटीजन। व्हाट इज एंटीजन? ओके, एंटीजन इज अ any foreign particle। okay, any foreign particle, that particle can be पैथोजन एज वेल। वो पैथोजन भी हो सकता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, बट एनीथिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर बॉडी, एनीथिंग डज नॉट बिलोंग्स टू योर बॉडी इज एंटीजन। कोई भी बाहरी चीज जो आपके बॉडी के अंदर का पार्ट नहीं है, बॉडी रिकॉग्नाइजेस इट एज एन एंटीजन एंड ट्राइज टू डिस्ट्रॉय इट। जब आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जो सेल डेब्रीज उसको कौन खा जाएगा? लार्ज फैगोसिटिक सेल। उस लार्ज फैगोसिटिक सेल को मैक्रोफेजेस कहते हैं। okay? These large phagocytic cells are called macrophages, और यही इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये कमाल की बात यह है कि आपके पास जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस which are of course a large phagocytic cells which feed on cell debris। okay, तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं आपके पास, और जो आपके पास होते हैं हेल्पर टी सेल्स, जो रिकॉग्नाइज करता है कि बॉडी के पास एंटीजन बाइंड तो नहीं हो गया,
तो जो हेल्पर टी सेल्स है, जो मैक्रोफेजेस है, इनके पास एक रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, ये रिसेप्टर्स को कहते हैं CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, CD4 रिसेप्टर्स के ही वजह से कोई भी एंटीजन इनके अंदर एंटर नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ दिस CD4 रिसेप्टर्स, नो एंटीजन कैन एंटर इनटू मैक्रोफेज, नो एंटीजन कैन एंटर इनटू हेल्पर टी सेल्स। क्यों? क्योंकि ये लॉक की तरह है, ताला लगा हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस CD4 रिसेप्टर्स, आपके मैक्रोफेजेस जो आपको इम्यूनिटी देने का काम कर रहे हैं, आपके हेल्पर टी सेल्स जो आपको इम्यूनिटी देने का काम कर रहे हैं, एंटीजेंस जो फॉरेन पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी को खराब करने, हार्म करने आए हैं, वो नहीं एंटर कर सकता बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स कॉल्ड CD4, and this is providing a lock mechanism to your particular macrophages and helpers. Okay, so जो CD4 receptors, you can recognize the CD4 receptors. What is happening basically? ये CD4 receptors, आप suppose आपके पास helper T cells है और इसके पास CD4 receptors. Okay? You're having helper T cells or you're having macrophages as well. तो आपके पास CD4 receptors है. कोई एंटीजन नहीं आ सकता except आपके human immunovirus. They are having epitope. ये आपके एपिटोप है ह्यूमन इम्यूनो वायरस के। ह्यूमन इम्यूनो वायरस का जो एपिटोप है, ये एपिटोप मास्क है GP120 से, और इसके CD4 रिसेप्टर्स इसको पहचान के मार नहीं सकते बिकॉज दे आर मास्क। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ये मास्किंग हटती है और ये आगे की तरफ बढ़ के इसके साथ बाइंड कर जाता है। मास्किंग हटी, बाइंड किया और इसके अंदर अपना DNA, अपना RNA डाल दिया। किसने? HIV वायरस ने मास्किंग GP120 की मास्किंग हटाई और अपने रिसेप्टर्स के साथ CD4 के ऊपर एक्ट कर दिया। तो अभी तो क्वेश्चन है मैम, आपने तो कहा CD4 इज अ लॉक। जो लॉक है उसको कैसे खोल के गया? बिकॉज इसका जो ये एपिटोप है, इट एक्ट्स एज अ की। ये की है, इस लॉक का ये की है। Okay, so it is exact acting as a key, but when unmasking is happening, this HIV virus goes in close contact with this helper T cells and then inserts its RNA along with enzyme called reverse transcriptase, ताकि अपना RNA को DNA में बदले, होस्ट के DNA के साथ अपने DNA को इंटीग्रेट करे, एंड उसके बाद वो जब हेल्पर टी सेल्स अपना रेप्लिका बनाएगा तो साथ साथ इस HIV वायरस के भी रेप्लिका बना देगा। दिस इज हाउ इन्फेक्शन इज अकरिंग। ओके, so this is how infection occurs. Helper T cells you can recognize. Helper T cells के पास ये आप देख सकते हैं अपना एक CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। ये CD4 रिसेप्टर्स हेल्पर टी सेल्स के लिए लॉक की तरह एक्ट करता है। हेल्पर टी सेल्स के लिए जो CD4 रिसेप्टर्स है, they act as a lock so that no antigen can so that no antigen can go inside, कोई एंटीजन अंदर नहीं जा सके, तो ये लॉक है। लेकिन जो आपका हेल्पर टी सेल्स के साथ ये जो इंटरैक्शन होता है HIV वायरस का, ओके, ये HIV क्या करता है? HIV वायरस का ये आपके पास एपिटोप है। ओके, सो एपिटोप फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइमिंग unmasking of GP120 is occurring. Okay, so when unmasking of GP120 is occurring, this HIV goes, okay, this HIV goes to helper T cells, and then what will happen? Okay, it binds to CD4 receptors. CD4 receptors के पास जाके bind कर देता है, and then what will happen? You can see when CD4 receptors are binded to it, then HIV inserts, okay, then HIV inserts its, क्या insert कर देता है? HIV inserts its RNA along with its enzyme called reverse ट्रांसक्रिप्टेज। HIV अपना एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज साथ में भेजता है, जिसकी वजह से RNA with the help of enzyme reverse transcriptase changes into DNA में बदल गया। Now this DNA
enters into the nucleus, enters into nucleus. Okay, it enters into the nucleus of host. Host is what? Host is helper T cells. Okay, helper T cells के nucleus के पास जाता है, and then DNA of virus integrates with DNA of what? DNA of helper T cells. When helper T cells will form its replica, this of course going to form replica of HIV. Now, what will happen? This helper T cells, you can see here, this helper T cells forms replica of virus as it has been integrated with the virus of DNA. Then what will happen? Virus is DNA, and then what will happen? This replica is replicating again and again. बार बार replica करके आप देख रहे हैं multiple viruses are released. और एक वायरस जाने से कितने वायरसेस हो गए? बिकॉज इट हैज बीन यूजिंग द मशीनरी ऑफ होस्ट, यानी जो आपका HIV वायरस है वो आपके होस्ट यानी जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है हेल्पर टी सेल फ्रॉम एंटीजन, जो हेल्पर टी सेल्स आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, वही आपको वायरसेस दिए जा रहा है। वो सोच रहा है वो क्लोनिंग करके आपको एंटीजन के खिलाफ प्रोटेक्ट कर रहा है, बट क्लोनिंग करके उसने सेवरल टाइम्स एम्पलीफाई कर दिया HIV वायरस, और हर जगह आपके पास viruses buds नजर आ रहे हैं, which you can recognize in this diagram. Like HIV virus is recognized by the helper T cells के CD4 and GB120 interaction हुआ, और उसके बाद इसने अपना RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अंदर डाल दिया। उसके बाद इसके RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मदद से आपको DNA मिल गया, और ये DNA अब इंटीग्रेट आप देख सकते हैं। This red one is what? This red one is HIV DNA, and this blue one is helper T cells DNA. And when it get integrated, it will form again viral protein और HIV protein जो of course HIV वायरस के थ्रू आ रहा है, HIV वायरस के DNA के थ्रू आ रहा है। Several HIV viruses replica has been formed from this helper T cells, and this is how HIV infecting helper T cells यानी जो रक्षक बना भक्षक, because of this HIV virus as it's been using the machinery of host body. I hope you enjoyed the lecture, and again we will meet in the another lecture regarding lymphocytes and how immunity is gonna done by this helper T cells and B lymphocytes.